Okay, students, today we will start the topic probability and we will learn and study today about the basics of probability. As you can see, first of all, the introduction. The word probability has two basic meanings. The first one is the quantitative measure of uncertainty, and the second is measure of degree of belief in a particular statement or problem. So in probability, we will discuss about the chance of anything. There are many examples. For example, when we toss something, the probability of head and tail we will see in this example. And for example, uh, when we when the weather is cloudy, so we can say that what would be the probability of rain. ठीक है, there are many examples. या फिर हम जब किसी डाई को रोल करते हैं उसमें जो उसका जो आउटकम्स आते हैं, उसमें नंबरिंग होती है 1 to 6, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. So we will study such type of things in this probability. And after the definition, the next thing is the foundations of probability. The foundation of probability were laid by two French mathematicians in the 17th century. The first one was Pascal था और दूसरा था D Fermat. Okay. So they connect with gambling problems. ने ये जो गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स थी, जब प्रोबेबिलिटी के फाउंडेशंस को अगर हम देखें तो इन ये जो मैथमेटिशियन 17th सेंचुरी में पास्कल और फर्मेट ने ये कनेक्शन किया था with gambling problems. And if we will see about the applications of probability, there are many applications of probability. As you can see here, application in economics, okay, management, operation research, sociology, psychology, astronomy, and so on. There are many applications in different field of life. We can apply this probability. Now, after that, we will see some basic definitions that maybe we will use in the study of probability. In which, first of all, you can see what is a set. सेट क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे. सेट की डेफिनेशन क्या है. सेट क्या होता है, एज यू नो, द सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. कोई भी जो हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड, उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज सेट. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर देयर आर टू एग्जांपल, and we will denote this set usually by capital letters A, B, C, D, and so on. And the elements or letters inside the set we will denote with small alphabetics. Okay, अगर alphabetics हम लिखेंगे तो small की तरफ, small में हम लिखेंगे. For example, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि capital A is equal to A, B, X, Y. This is one set. We can see here these are distinct objects. No one is repeating and well defined. Similarly, set B 1, 2, 3, 7. This is another set. If we say some element belong to a set, we will denote it with X belong to A. कोई भी एलिमेंट अगर हम कहें कि वो सेट से बिलोंग करता है, we show X belong to A. Okay, and if some element not belong to a set, we denote it with X not belong to A with this symbol. These are the symbols that shows belong, and this is a symbol of not belong to a set. After this, we will see what is empty set or null set. As by the name, the empty set or null set is denoted by this phi. Usually we denote with this phi. Okay, this means that the set is empty. There is nothing inside in the set. This is known as empty set.
And if 0 is inside the set, only one element 0, so we will not say that it is an empty set. Okay, because 0 is inside, 0 is also an element. So to denote the empty or null set, we will use this phi, and there is nothing inside. अंदर इसके कुछ भी नहीं होता, ये खाली हमारे पास होता है. And the next is the types of denoting a set. For example, a set may be specified in two ways. Here are two ways you can see. The first one is roster method. This method, okay, this method is known as roster method, and the other method is known as set builder method. This method, this is the example of set builder. रोस्टर मेथड में देखें हमारे पास एलिमेंट्स की फॉर्म में चीजें 1 3 5 7. सेकंड एग्जांपल में बी में अ बुक, अ सिटी, अ क्लॉक, अ टीचर, इस तरह के एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं. और जो सेट बिल्डर फॉर्म में उसमें हम इस तरह से x, व्हाट इज दिस इज मीन सच दैट x कैसा होना चाहिए, x इज एन ऑड एंड x इज लेस देन 12. लेस देन 12 के जितने भी ऑड एलिमेंट है वो हम ले लेंगे. वो कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9 and 11. So we can also write the set builder in the form of roster. Okay, the next thing is there are many example of this set as you can see here. And there is also two things. If the number of element in a set is finite, we will say that the set is finite set. And if the number of elements are infinite in the set, we will say that set is infinite. So next is what is one-to-one correspondence. One-to-one correspondence क्या होती है? A set A is said to be in one-to-one correspondence with set B when every element of set A can be made to correspond to one and only one element of set B, and conversely. सेट A के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास B में भी एक ही एलिमेंट हो. ठीक है. For example, in set A we have 4 elements, in set B we also have 4 elements. So this is one-to-one correspondence between these two sets because the number of elements are same. इसमें भी 4 elements A में भी और B में भी 4 elements. So these sets are in one-to-one correspondence, A and B. The next definition is what is subset. What is subset? Subset क्या होता है? A set that consists of some elements or members of another set. कि किसी भी एक हमारे पास सेट है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एग्जांपल है, a is equal to 1 2 3 4. ये हमारे पास सेट है. अब इसी का एक हम सबसेट बना सकते हैं. मे बी वी विल डिनोट विद c. वो क्या होगा? That may be consist of some elements. Some elements we can take only 1 and 2. So this C will be the subset of set A. C जो होगा वो A का subset होगा. And you can see the example, one more example here about subset. We have a set A. This is set A, and this is set B. We can see that every element of set B, that is 1 3 5 1 3 5, is also in set A. So we will denote set B is subset of A. Okay, this is a notation of this. B is subset of A. If B is not a subset of A, we can also say that B is not a subset of A. We can denote it as like this. B is not a subset of A. If any element of B that is will be not the element of set A, हम कहेंगे B जो है A का subset नहीं होगा. Okay, अभी हमने subsets के बारे में देखा, and we can also know more about these subsets. If we want to find the number of subsets, कितने किसी भी set के subsets बनते हैं, there is very easy formula to know about this. The formula is 2 raised to power n. 2 raised to power n. This is a formula to find the number of subsets of any set.
For example, we have set A that have two elements. Okay, any two elements, 2 and 5 we write here. And to find how many subsets of set A, by using the formula, what is the formula? 2 raised to power n. N mean number of elements in a set. यहाँ पे कितने elements हैं? There are 2 elements, 2 raised to power 2, that will be equal to 4. तो इसके 4 subsets बनेंगे. And कौन से 4 बनेंगे? One is empty set and the set itself. These are also the subsets of any set. Empty set आ जाएगा, set खुद से आ जाएगा, and we can make 2 subsets of with single elements. 2 का एक 2 element होगा उसमें, वो एक subset आ जाएगा, और एक जिसमें 5 होगा वो एक subset हमारे पास आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे लिखा भी है इंक्लूडिंग s and phi. s and phi मीन जो हम सेट हम कंसीडर कर रहे होंगे वो, और phi इज द एम्प्टी सेट. ये हमेशा जो सेट इटसेल्फ होता है वो भी अपना ही सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है. ओके, नेक्स्ट इज वेन डायग्राम. ओके, वन डायग्राम क्यों यूज करते हैं? ए डायग्राम दैट इज अंडरस्टूड टू प्रेजेंट सेट्स बाय सर्कुलर रीजन्स. वेन डायग्राम में हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारे पास जो सेट्स हैं उनको हम सर्कुलर रीजन्स के फॉर्म में लेते हैं. लाइक दिस यू कैन सी हियर, दीज आर 2 सेट्स and this is rectangular shape figure. You can see it, a simple Venn diagram. क्या है इसमें देखें, ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें हम सेट्स को सर्कुलर रीजन से शो करते हैं. एंड व्हाट इज एस? एस इज अ यूनिवर्सल सेट. ये दिस इज द यूनिवर्सल सेट होता है एस, और एस ये पूरे को डिनोट कर रहा है. एस इज द होल ऑफ दिस फिगर. जो अभी आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये सारी की सारी हमारे पास एस है. इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, एंड द रेक्टेंगुलर जो एरिया ब्लैंक है वो भी इसमें इंक्लूड है. Next we can see how can we apply the operations of sets by using Venn diagram. As you can see here, operation on sets. The first operation is the operation of union, A union B. Okay, and A union B, if we will denote in set builder notation, तो वो किस तरह से होगा? X such that X belong to A or X belong to B. यूनियन में क्या करते हैं, तमाम जो सेट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा कर देते हैं. ठीक है, तो ए और बी से, ए में से चाहे वो एलिमेंट हो या बी में से हो. जब हम इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो जब यूनियन करेंगे तो हम किसको शेड करेंगे? वी विल शेड बोथ ऑफ ए एंड बी. ओके, द सेकंड थिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स such that x belong to A and x belong to B. इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो A में भी हों और B में भी हों. तो जब इसकी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी, तो इसमें जस्ट A और B का जो कॉमन एरिया है उसको हम जस्ट शेड करेंगे. ओके, A और B का जो कॉमन एरिया है उसको हम शेड करेंगे. एज यू कैन सी, इसका जो कॉमन एरिया है वो हम जस्ट शेड कर रहे हैं. The next thing is the difference. We can also find the difference of two sets. और वो कैसे होगा? As you can see here, the difference A minus B, और इसको हम we will write in set builder notation. तो कैसे आएगा? X such that A minus B mean the elements of belongs to set A but not belong to set B. Okay, कि A के वो तमाम elements जो B से belong ना करते हो, ठीक है, जो B में ना हो. तो A के elements दिस इन सर्कुलर रीजन, तो देखें ये जो रीजन है यहाँ तक हम इसको जस्ट शेड करेंगे बिकॉज दिस इज द कॉमन रीजन. ये जो सेंटर वाला है, ये बी के भी एलिमेंट्स, इसको हम शेड नहीं करेंगे. ओके, वन मोर थिंग, व्हाट इज कंप्लीमेंटेशन और कंप्लीमेंट, वो हम कैसे लेते हैं सेट्स का?
In complement, the complement of any set is denoted by a bar. ठीक है, एक ऊपर हम बार लेते हैं, and this means that the element इसमें किस तरह के होते हैं, the elements are such that x belong to S. What is S? S is universal set, ये तमाम का तमाम S है, and x not belong to A. ठीक है, and we denote with this A complement usually also like this, A complement is equal to S minus A. The elements of S that are not in A. Okay, S के वो तमाम है, S ये सारे का सारा this rectangular region. ठीक है, तो A को हम शेड नहीं करेंगे and we will shade all the other area. And also please note the algebra of sets. Algebra of sets में you can see these sets also satisfies many laws, as you can see here, commutative law. ठीक है, उसमें क्या होगा, A union B. commutative law में हम क्या देखेंगे, A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. And similarly, you can see associative law hold in sets, distributive law hold, idempotent laws hold, identity laws hold, complementation laws hold. And similarly, some more laws like De Morgan laws also hold in set theory or in sets. Okay. The next thing is about partition of sets. What is partition of sets? कि किसी भी set के हम partition किस तरह से हम कर सकते हैं. The partition is of two types. इसके दो types हैं. One is disjoint. Disjoint में क्या होगा, जो sets की हम partitioning करेंगे, अगर हम उनका intersection लें तो वो empty set आएगा. For example, we have a set इसमें element 1 2 3 4 है, उसके हम two subsets ले लें 1 2 and 3 4, इनका intersection लें तो क्या आएगा, empty set. And the other is partition of set is exhaustive. Exhaustive में क्या होता है, their union is the set S itself. उसमें क्या होता है कि जितने भी subsets होते हैं, अगर हम उनका union लें तो हमारे पास जो set itself आ जाए. So we can do the partition of any sets in two forms. One is disjoint. Disjoint में क्या होता है, empty set आ जाता है, और exhaustive में उनका जो union होता है sets का, वो हमारे पास set itself आ जाता है. Okay. The next thing is, what is class of sets? Class of sets. A set of sets is called a class of a class. किसी भी set के जो sets बनते हैं, subsets बनते हैं, उनको हम कहते हैं class of sets, और sometime we can say it power set. इसको power set भी कहते हैं. And we denote this by PA. ठीक है, power set को हम इस तरह से denote करते हैं. And we can easily find the total number of subsets of any set by using the formula 2 raised to power n. इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि कितने, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है A is equal to H and HT. There are two elements, H is head, T is a tail of any tossed coin. तो हमने देखना है कि कितने इसके सबसेट्स बनेंगे. How many subsets of this set? By using this formula क्या आएगा, 2 raised to power 2, 4. तो 4 इसके सबसेट्स हैं. फर्स्ट इज द एम्प्टी सेट, और फिर सिंगल एलिमेंट्स का हम सेट्स बनाएंगे, और फिर एट द एंड 2 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू A. सो वी कैन सी how can we find the power sets of any set or class of sets. The next is the Cartesian product. Cartesian products of sets हम कैसे लेंगे. Cartesian products में क्या करते हैं, we need two sets A and B, or we will denote the Cartesian product by A cross B. Okay. और ये A cross B कैसा होता है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं. द एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, इन विच x, द फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंग टू सेट A, और जो सेकंड एलिमेंट होता है y, दैट इज बिलोंग टू सेट B. क्लियर.
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स that will be equal to the elements are in the form of ordered pairs, जिसमें the first element belongs to set A and the second element that is equal to Y belongs to set P. For example, you can see here we have one example. How can to find the Cartesian product of two sets? Here the sets are first the set A that have two elements H T. H is a head and T is a tail of any tossed coin, and the second set is B, or you can say that this is an example of any die that is roll. Okay, or we can say this is the outcomes of any die when we roll it. इसके जो die उसके जो outcomes है 1 2 3 4 5 6, as you can see here 1 2 3 4 5 6 there. अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं. किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी. सो ए क्रॉस बी किस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे? हाउ टू फाइंड? अभी हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इट इज अ सेट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे. तो फर्स्ट हम एज को लेंगे, ओके, एंड टेक मेक द ऑर्डर्ड पेयर विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी. एज के तमाम जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के, उन सब के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है? वी हैव टी. तो टी के बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ हम इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाएंगे. सो दिस इज द वे टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. एंड आल्सो कीप इट इन योर माइंड, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जनरली नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है, ये जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता. And also you must know about this. The first element, these first elements are belongs to the domain. जो domain के elements हम कहलाते हैं. ओके, और जो second elements होते हैं all the order pair, वो किससे belong करते हैं? range के साथ. second element range के साथ belong करते हैं. After this, the next basic thing that we know about, what is the relation and function. Relation क्या होता है? Function क्या होता है? As you can see here in the relation क्या होता है हमारे पास? A relation from a set A to set B is a subset of the Cartesian product. जो भी हम Cartesian products लेंगे उसका कोई भी हम subset ले लें, that will be known as relation, and we can say that it is binary relation इसको कह देते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली अभी हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें से कोई भी सबसेट आप ले लें तो वो जो उसका सबसेट आएगा that is known as relation or binary relation. The second definition is what is function. Function क्या होता है? To define the function we also need two sets, for example set A and set B, and we denote the function by this notation. F is a function from A to B. Okay, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन वैल्यूज इन सम मैनर्स फ्रॉम अ सेट A to a set B such that for each element of x of A, x के A के हर एलिमेंट के लिए there is a unique element y of B. कि x के अगर कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं और we will take each element of x set element x of set A, there will be a unique element y of b. b में से हमेशा एक ही एलिमेंट आ जाए. इस तरह से जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे that is known as function. ठीक है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी हम इसको देख सकते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि इस तरह से फंक्शंस को हम दे सकते हैं कि डोमेन के एक एलिमेंट के लिए जो रेंज का एलिमेंट हो बी में से वो यूनिक हमारे पास हो. Okay, next is what is a random experiment.
रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द टर्म एक्सपेरिमेंट, किसी भी जो एक्सपेरिमेंट के जब हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डेट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी और प्रोसेस हमारे पास होता है, ओके, whose result yield a set of data. कोई भी एक सिंगल परफॉर्मेंस होती है जो करते हैं या कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट की, डेट इज नोन एज अ ट्रायल, ओके। और उस ट्रायल का जो आउटकम्स होता है, जो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम, उसको हम आउटकम कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी हम ट्रायल करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम कहेंगे दैट इज द आउटकम। फॉर एग्जांपल हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट क्या आएगा? मे बी इट इज हेड और टेल, तो हेड और टेल उसको क्या होंगे? दैट विल बी द आउटकम्स उसके होंगे। और जो परफॉर्मेंस है उसकी, वो हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंट है और उसको हम ट्रायल कहेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? Usually the sample space is the possible outcomes, okay, a set of consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ये एक सेट होता है, उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उसके जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको अगर हम सेट बनाएं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी से देख सकते हैं। वी हैव वन एग्जाम्पल। द सैंपल स्पेस this one, the sample space for tossing two coins once will contain four possible outcomes denoted by S। कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं, अगर हम उनको टॉस करते हैं, उनके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे कि वी कैन सी इट हेयर कि हमारे पास सैंपल स्पेस कैसे आएंगे? ये एस है। एस क्या है हमारे पास? दिस एस is in fact the outcomes of any tossing coin। उसका हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? दिस सेट हम क्या करेंगे? कार्टियन प्रोडक्ट लेंगे इनका, ठीक है। तो क्या आउटकम्स आएंगे? एच एच आ जाएगा फर्स्ट, एच टी आ जाएगा, मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। Similarly we can find the sample space of any two die that is rolled। उनका जो सैंपल स्पेस हम निकाल सकते हैं, क्या होगा? वी हैव अ सेट, हम सेट ले लेते हैं ए। वी हैव सेट ए, दिस इज अ सेट, ठीक है। अगर हम इसका सैंपल से स्पेस निकालना चाहें तो क्या होगा? वी विल टेक द कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए से हम क्या देखेंगे? इसके जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स एज यू कैन सी हेयर, these are the all possible outcomes। तो क्या होगा? इसके हम कार्टियन प्रोडक्ट, हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फर्स्ट हम वन को लेंगे और 1 to 6 तमाम एलिमेंट्स के साथ इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सिमिलरली टू लेंगे, टू के तमाम एलिमेंट्स, टू को तमाम एलिमेंट्स के साथ इसका ऑर्डर पेयर लेंगे। एंड सिमिलरली वी कैन मेक द ऑर्डर पेयर of all the elements। This is known as the sample space। Next thing is what is event। Event क्या होता है हमारे पास? Event क्या है? एन event is an individual outcome, okay, or any number of outcomes sample points के,
ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ट्रायल करते हैं, उसके जो आउटकम्स आते हैं वो इंडिविजुअल हो या नंबर ऑफ आउटकम्स हो, एनी नंबर ऑफ आउटकम्स, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज इवेंट्स। The next thing is what is mutually exclusive events. Okay, what is mutually exclusive events? As you can see here, for mutually exclusive events, two events A and B of a single experiment, हमारे पास कोई भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल टॉस अ कॉइन, ठीक है, सिंगल एक्सपेरिमेंट होगा, उसके जो दो टू आउटकम्स होंगे, एक हेड ले लेते हैं, एक हम टेल ले लेते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time. Okay, there we have many examples, but here we can see अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करें तो आइदर या तो उसका हेड आएगा और टेल आएगा, या हम किसी भी we will roll any die, ठीक है, डाई को रोल करें और डाइस को रोल करें तो हमारे पास उसके जो आउटकम्स आएंगे वो क्या हो सकता है, फ्रॉम 1 to 6 देयर इज ओनली वन आउटकम पॉसिबल कि एक ही हमारे पास आएगा, ठीक है, कि एक से ज्यादा हमारे पास उसके आउटकम्स नहीं आ सकते। दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसमें चांस क्या हो, हमारे पास देयर इज ओनली वन आउटकम चांस, उसमें एक ही हमारे पास ऑप्शन आए, एक से ज्यादा जो है वो अकर ना हो एट द सेम टाइम। एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स? एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज एक्सक्लूसिव इवेंट? दिस वन, ओके, events are said to be collectively sorry, this is exhaustive events, not exclusive. Exhaustive events क्या होंगे? Events are said to be collectively exhaustive when the union of mutually exclusive events is the entire sample space, ठीक है। एग्जॉस्टिव जिस तरह से हमने पहले सेट्स में भी पढ़ा था, एग्जॉस्टिव में क्या होता है, जो भी इसके आउटकम्स होंगे अगर उन सब का यूनियन ले लें तो हमारे पास वो टोटल के टोटल जो सैंपल स्पेस है वो सारी की सारी आ जाए, दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यूनियन किया जाए इवेंट्स का तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वली लाइक इवेंट्स? Two events A and B are said to be equally likely when one event is as likely to occur as the other, ठीक है, कि जिस तरह से कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करें, जिस तरह से एक चीज के आने के चांसेस हो तो दूसरे के भी इक्वली चांसेस उसके हों। जो फॉर एग्जांपल अगर हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो उसमें जो इवेंट्स है दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि वो हेड भी आ सकता है और इक्वली वो क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइक इवेंट्स। And there are some events and symbolical representation. We must know about all of these things. हमें पता होने चाहिए। And this is the verbal statements. Verbally अगर उसको कहा जाए तो उसका set notation में उसकी कैसे notation होगी? We must know about these things. For example, हम कहते हैं event A. It's mean that this event A is a subset of sample space. Okay. Event A is impossible. It's mean that this event is empty set. तो वो empty होगा। Event is sure or certain. It's mean that this event is equal to the whole sample space. And similarly, you can see all of these notations. Okay. Next is how can we count counting sample point? कि जो sample points हैं हम उनको कैसे count कर सकते हैं? There are different rule. जैसे कि first of all we will see here rule of multiplication. Okay, this is the first rule to count
द सैंपल पॉइंट्स, जो भी हमारे पास सैंपल पॉइंट, जो भी हमारे पास सैंपल पॉइंट है सेट से या ट्रायल से या एक्सपेरिमेंट से, हम किस तरह से उसके जो नंबर ऑफ उसके आउटकम्स हैं और वो हम किस तरह से देख सकते हैं। द फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस रूल में क्या होता है, जस्ट हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेट्स होते हैं या आउटकम्स हमारे पास होते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, उसके जो आउटकम्स होंगे मीन्स के जो उसके एलिमेंट्स होंगे सेट के, अगर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल वी हैव आउटकम्स हेड एंड टेल, ओके, एंड वी हैव डिस्टिंक्ट आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 ऑफ एनी डाई दैट इज रोल्ड। तो अगर हमने देखना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, तो क्या करेंगे, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, एज यू कैन सी हियर कि जो हमारे पास टॉस्ट किया गया था कॉइन्स के जो आउटकम्स थे, हाउ मेनी आउटकम्स, देयर वाज 2 आउटकम्स, और जो डाई रोल किया गया था उसके कितने आउटकम्स थे, 6 थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 12। तो इसके सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड द सेकंड रूल क्या होता है, that is known as rule of multi permutation or permutation. What is permutation? The definition is a permutation is any ordered subset from a set of n distinct objects. Okay, this is also a subset of n distinct objects. The number of permutation of r objects selected in a definite order. इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम n distinct objects, किसी खास ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लेते हैं, किसी भी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए होते हैं उनमें से कोई खास जो एक ऑर्डर होता है उसके थ्रू हम एलिमेंट्स को उसमें से चूज करते हैं, दैट इज नोन एज रूल ऑफ परमुटेशन। एंड वी डिनोट दिस परमुटेशन by this thing, by this formula, as you can see. I'm going to encircle it, and this is the formula, this one. Okay, the expression of permutation n elements and distinct elements, और उसमें से जो r जो है इसमें जो हम we will select with definite order जो इसमें से elements हैं, that is denoted by n factorial divided by n minus r factorial. Okay? And what is the definition of factorial? N factorial is equal to, हम किसके इक्वल होता है ये हमारे पास, we'll write it n, okay, and next is n minus 1 and n minus 2 and so on up to, इसी तरह से हम करते जाएंगे n minus 3 n minus 4 so on up to 2, ओके, एंड 1, यहाँ पे n पे हमारे पास 1 आ जाए। We have another rule, rule of combination. Rule of combination में हम क्या करते हैं, this is the third rule, rule of combination. ठीक है, combination is any subset of R objects selected without regard to their order. ये भी हमारे पास एक सेट होता है हमारे पास एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, बट इसमें से जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो हम किसी खास ऑर्डर से नहीं लेते। परमुटेशन में तो खास ऑर्डर होगा, भी हम एग्जांपल भी एक देखेंगे, 2 एग्जांपल्स अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, किस तरह से उसमें ऑर्डर का ख्याल करते हैं और किस तरह से इसमें ऑर्डर नहीं होता कॉम्बिनेशन में। एंड वी डिनोट दिस कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग दिस टू नोटेशन, एज यू कैन सी हियर, एनसीआर और ब्रैकेट लगाएं एनआर, और ये किसके इक्वल होता है, this is equal to this one. Okay, this is the formula of combination, n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Okay, this is the formula of combination of n distinct objects in which r elements is selected without any specific order. After this we will see 2 examples. For example, we have this example, example 6.1. इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम किस तरह से परमुटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल 6.1, a club consists of 4 members. Okay, how many members? 4. It's mean that n is equal to
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4। हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस, कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में से। व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चोजन। ठीक है, कि हमने क्या करना है कि 4 मेंबर्स हैं और हमने ये देखना है कि सैंपल पॉइंट्स में से जो सैंपल स्पेस में से कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन 3 ऑफिसर्स को हम चूज कर सकते हैं विद दिस ऑर्डर। प्रेसिडेंट उसमें इंक्लूड हो, सेक्रेटरी इंक्लूड और ट्रेजरर इंक्लूड हो। सो बाय यूजिंग द परमुटेशन, क्योंकि इसमें खास ऑर्डर है, अब ये 3 मेंबर्स होने चाहिए उसमें, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। उसका हम परमुटेशन कैसे फाइंड करेंगे। द फार्मूला इज, वी नो दिस इज इक्वल टू, the formula is this one, P N R। ठीक है, अब N क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स 4, और R क्या होगा, जो हमने 3 ऑफिसर्स को हमने इसमें से खास ऑर्डर से लेना, सैंपल स्पेस में से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लेंगे, तो इसका हम परमुटेशन से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो द आंसर विल कम्स 24। तो 24 ऐसे सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में से जिसमें ये 3 ऑफिसर्स इंक्लूड होंगे। And similarly, we can find the combination. And how can to find the combination, as you can see here, combination कैसे हम find करेंगे in example 6.3, how many sample points, same thing we need to find, are in the sample space when a person draws a hand of 5 cards from a well shuffled ordinary deck of 52 cards। 52 cards है हमारे पास, ठीक है, और हमने ये देखना है कि 5 कार्ड्स जो हैं उसमें से कोई लेने, कोई से भी। अब इसमें देखें देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, तो सैंपल पॉइंट्स हमें चाहिए सैंपल स्पेस में से जिसमें से 5 कार्ड उसमें से निकाले जाएं। वो कितने हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में से। देखें देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, वी डोंट नो विच कार्ड्स। ठीक है, एज वी नो इन दिस कार्ड्स देयर आर डिफरेंट कार्ड्स वी हैव, तो हमें ये नहीं पता कि हमने कौन से कार्ड्स लेने हैं। वी जस्ट नीड टू टेक 5 कार्ड, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, नो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, वी विल अप्लाई कॉम्बिनेशन। ठीक है, CNR, और वी विल डिनोट विद दिस ब्रैकेट NR। N इज 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, और हमने इसमें से कितने डिस्टिंक्ट उसमें से कितने कार्ड्स निकालने हैं, 5 कार्ड्स। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन का, दैट इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल, ओके, divided by n minus r, 52 minus 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, बट वी कैन स्टार्ट यूज द फार्मूला एंड विद दिस वी हैव 5 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिस इज द सैंपल पॉइंट्स, ये हमारे पास सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में जिसमें से 5 कार्ड जो हैं, इतने हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतने कार्ड हम चूज कर सकते हैं। ओके, so this is the basic things about the probability that we learned here. Hope so you can understand it.